ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 31۔ فاطمہ ایک فالتو کپڑا پکڑے الماری کے ساتھ ساتھ کتابوں کو صاف کرنے کے بعد ہی بیڈ پر رکھ رہی تھی۔ اچانک 2-3 بھاری کتابوں کو ایک ساتھ پکڑنے کے چکر میں اس کے پاؤں کا توازن بگڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمر کے بل نیچے گرتی کمرے کے اندر آتے، عفان نے ایک ہی جست میں آگے بڑھتے اسے زمین بوس ہونے سے بچا لیا۔ آہ سس! ڈر کے مارے فاطمہ کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی جو اگلے ہی پل ہلکی سسکی کی صورت اختیار کر گئی تھی، کیونکہ عفان کی موجودگی کو دیکھتے فاطمہ اگلے ہی سیکنڈ خود کو سنبھالتی اس سے 2 قدم فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ نتیجتاً اس کا وزن پھر سے اسی پاؤں پر پڑ گیا جس کی وجہ سے اس کا توازن پہلے ہی بگڑ چکا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ فاطمہ کو درد برداشت کرتے دیکھ عفان نرم لہجے میں اس کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ ٹھیک ہوں میں، فاطمہ بھیگی آنکھوں سمیت خشک لہجے میں گویا ہونے کے بعد فوراً نیچے جھکتی اپنی کتابیں زمین سے اٹھانے لگ گئی۔ عفان اس کے سراپے پر سے نگاہیں چراتے اپنا رخ موڑے کھڑکی کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا، کیونکہ فاطمہ کو شدید غصے میں ہونے کی وجہ سے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ ابھی تک دوپٹے سے آری وجود سمیت گھٹنوں کے بل نیچے زمین پر بیٹھی اسٹول کو سیدھا کرنے کے بعد اب کتابیں اٹھا رہی ہے۔ اچانک ٹکراؤ کے باعث اس کا کیچر 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر نیچے گر چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے لمبے سلکی بال کسی آبشار کی مانند اس کی کمر پر پھیلتے اس کو پوری طرح ڈھانپ چکے تھے۔ ایک کتاب اٹھاتے ہوئے اچانک فاطمہ کی نگاہ زمین پر گرے کیچر کے ٹکڑے کی طرف اٹھ گئی، تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ اس وقت کس حالت میں یہاں موجود ہے۔ بے اختیار اس کی نگاہیں عفان کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ اس وقت اپنا رخ موڑے تقریباً اس کے ہوش میں آنے کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ فاطمہ کو اپنی غائب دماغی پر رچ کر افسوس ہو رہا تھا، اس لیے اپنا سر پیٹنے کے بعد اس کی سائڈ سے گزر کر دوپٹہ اٹھانے بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ دوپٹے کو درست انداز میں سر اور شانوں کے گرد پھیلاتے اس کے ہاتھ باقاعدہ کپکپاہٹ کا شکار لگ رہے تھے۔ بڑی جلدی ہوش آ گیا انہیں۔ اس کے قدموں کی چاپ سنتے ہی عفان دھیمے سے مسکراتے دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہو رہا تھا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے قدم آگے بڑھاتے کمرے کے وسط میں آن کھڑا ہوا۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ میں کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی تھی جو آپ پیچھا کرتے یہاں بھی آ گئے؟ فاطمہ کی نگاہیں اور زبان دونوں اس وقت شعلے اگلنے میں مصروف تھی۔ بیہیو یور سیلف فاطمہ۔ اس کے حد درجہ اکھڑ انداز پر عفان جیسا نرم مزاج شخص بھی اسے ٹوکے بنا رہ نہ سکا۔ عفان کے سنجیدہ لہجے پر فاطمہ کو اپنی بدتمیزی کا احساس تو ہوا، مگر وہ کیا کرتی؟ یہ سب کرنے پر وہ خود کو بار بار کتنا مجبور کر رہی ہے تو صرف وہی جانتی تھی۔ پچھلی بار جو حادثہ ہوا دوبارہ سے وہ سب نہ ہو، بس اسی لیے یہاں آیا تھا۔ اور آپ ہیں کہ عفان نے خود کے تنِ اعصاب پر قابو پاتے اس کی آنکھوں کی سختی کو اپنے نرم لہجے سے مات دی تھی۔ آپ شاید بھول چکے ہیں، مر چکا ہے وہ ناصر ملک۔ فاطمہ نادم انداز میں اپنے چہرے کو نیچے جھکائے دھیمی آواز میں گویائی۔ عفان کو ایمان فاطمہ کے انگ انگ سے بے بسی کی جھلک پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ جو بھی ہے فاطمہ، آپ کو اس طرح اکیلے باہر نہیں آنا چاہیے تھا، اس طرح تو کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا تھا۔ پلیز آپ اپنا خیال رکھیں، میں نے آمنہ آنٹی سے وعدہ کیا اور میں اس وعدے کو اپنی آخری سانس تک نبھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ عفان نے جذب کے عالم میں کہتے اپنے قدم بے اختیار فاطمہ کی جانب بڑھا دیے۔ جن کی زندگی کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا وہی نہیں رہیں تو میری نظر میں یہ سب کوئی وقت نہیں رکھتا۔ آپ اس وعدے سے خود کو آزاد ہی سمجھیں، کیونکہ اب مجھے اپنی زندگی کی سلامتی بالکل نہیں چاہیے۔ اگر اب کوئی مجھے مارے گا تو یہ الٹا اس کا مجھ پر احسان ہوگا جو مجھے اس اذیت۔ فاطمہ اپنا رخ موڑے بھیگے لہجے میں گویا ہوتی یاسیت کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی خود کو اتنا بے بس نہیں سمجھا تھا جتنا وہ آمنہ بیگم کے جانے کے بعد خود کو محسوس کر رہی تھی۔ آپ کیوں اتنی مایوسی والی باتیں کر رہی ہیں؟ عفان نے گہرا سانس بھرتے اس کی بات کو مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوک دیا۔ جسٹ لسن ٹو می فاطمہ، پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن ہمیشہ پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی زندگی کے نئے سبق سیکھتا ہے، ورنہ خوشی میں تو کئی لوگ پچھلے سبق بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ کو بھی ان حالات سے زندگی کا ایک نیا سبق سیکھ کر ان تمام مشکلات سے باہر نکلنا ہوگا۔ عفان فاطمہ کو بازوؤں سے تھامے حلاوت آمیز لہجے میں گویا ہوا۔ فاطمہ کی بھیگی آنکھیں ابھی تک ویسے کی ویسے ہی جھکی ہوئی تھیں۔ میں کم از کم آپ سے تو ایسی نا امید باتوں کی توقع بالکل نہیں رکھتا فاطمہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل مضبوط رکھنا چاہیے، آپ تو مجھ سے بہتر یہ سب جانتی ہیں۔
इंसान को अल्लाह ताला पर तो अपना तवक्कुल बिल्कुल परिंदों की तरह रखना चाहिए, क्योंकि वो इसी बरहक ज़ात के भरोसे सुबह खाली पेट निकलते हैं और रात को भरे पेट घोंसलों में वापस आते हैं। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में दरपेश हर सूरत हाल को अल्लाह की एक मसलहत समझ ले, तब इसे अपनी ज़िंदगी कभी भी बोझ नहीं लगेगी। मोमिन के कामिल ईमान की निशानी यही है कि वो अल्लाह ताला के किए गए हर फैसले को इसकी रज़ा समझे और बिना कुछ कहे अपना सर तस्लीम कम कर दे। फातिमा का लर्ज़ता वजूद अब काफ़ी हद तक संभल चुका था। सॉरी, आपने मुझे हाथ लगाने से मना किया था, मगर मैं अनजाने में आपका बनाया गया रूल फिर से तोड़ चुका हूँ। फातिमा की कही गई बात याद आने पर अफ़ान ने नरमी से अपने हाथों को इसके बाजुओं से पीछे हटा दिया। बेध्यानी में फातिमा खुद भी इस बात को अक्सर भूल चुकी थी। अब अफ़ान के कहने पर वो सटपटाहट का शिकार होती फिर से स्टूल की तरफ बढ़ गई। रुके, मैं निकाल देता हूँ आपको। अफ़ान फ़ौरन आगे बढ़ा और खुद स्टूल पर चढ़े सारी किताबें एक जगह इकट्ठी करने लगा। एक एक करते बेड पर किताबों का एक ढेर जमा हो गया था। इतनी सारी किताबों का आप करेंगी क्या? आखिरी किताब बेड पर रखने के बाद अफ़ान ने हाथ झाड़ते इन सारी किताबों को हैरत भरी निगाहों से देखा था। मेरे ख्याल से किताबों को पढ़ा ही जाता और पकौड़े बनाकर तो बेचने से रही। फातिमा उसके बेतुके सवाल पर झुंझला सी गई। इसे अपनी कुछ देर पहले की गायब दिमागी हालत पर तप चढ़ी हुई थी। हाँ, इसका सलगता अंदाज देखते अफ़ान जैसा संजीदा मिजाज इंसान भी खुद को कहका लगाने से रोक नहीं पाया था। मेरा मतलब है, आपको कराची आए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, इतने कम अरसे में आपने इतनी किताबें जमा कर लीं। फातिमा की घूरी पर अफ़ान अपनी मुस्कुराहट को ज़ेरे लब दबाए बात की मुकम्मल वजाहत कर रहा था। मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ अपने लिए किताबें लाजमी लेती हूँ। इसमें से आधी तो मैं पढ़ भी चुकी हूँ। एक लिस्ट बना कर लाई हूँ। जो बुक्स पढ़ ली उन्हें वापस किसी लाइब्रेरी में रखवाना और बाकी की जो बुक्स पढ़ने वाली उन्हें घर लेकर जाना है। फातिमा लिस्ट में मौजूद किताबों को अलग अलग करती मसरूफ़ अंदाज में बोल रही थी। फिर भी इतनी किताबें कैसे पढ़ लेती हैं आप? फातिमा की आंखों की सुर्खी अब कदरे कम नज़र आ रही थी, इसलिए अफ़ान सीने पर हाथ बांधे इसके बिल्कुल सामने दीवार के साथ जुड़कर खड़ा हो गया। अफ़ान की दरफ्तगी से भरपूर निगाहें इस वक्त फातिमा के सादा मगर खूबसूरत हुलिये को ही देखने में महव नज़र आ रही थी। इसके मेकअप सियारी नैनो नकुश अफ़ान के दिल को अजब लय में धड़कने पर मजबूर कर रहे थे। बचपन से लेकर अब तक ये किताबें ही मेरी दोस्त होने का हर फ़र्ज़ निभाती आई हैं। इसलिए दुनिया में मामा और इन किताबों के अलावा मेरा और कोई नहीं था, इसीलिए इन्हें ही अपना दिल लगाए रखती थी। आमना बेगम को याद करते इसका लहजा फिर से रंध गया। इन्होंने मुझे कभी भी बोरियत का एहसास नहीं होने दिया। फातिमा एक किताब को थामे खोए खोए लहजे में बोलती से अपने नरम पोरों से छू रही थी। मैं यहाँ आपकी मदद के लिए खड़ा हूँ ना, तो फिर क्यों आप खुद ये सब? फातिमा लिस्ट को साइड पर करती अब इन किताबों को एक एक करके गोद में रखती वहाँ से उठने लगी। जब भी अफ़ान ने आगे बढ़ते इसके हाथ पर अपना हाथ रखे इसे वज़न उठाने से मना कर दिया। सॉरी, हाथ लगाने से तो मना किया था आपने। फातिमा की जताती निगाहों का मतलब समझते अफ़ान ने जल्दी से अपना हाथ पीछे हटाए सारी किताबें खुद इकट्ठी करना शुरू कर दी। आप एक ही बात बार बार दोहराकर क्या साबित करना चाहते हैं मुझे? फातिमा अजहद गुस्सीले लहजे में गोया होने के बाद अफ़ान के बिल्कुल सामने खड़ी इसके जवाब की ही मुंतज़िर थी। आपको कुछ भी साबित नहीं करना मुझे, मैं तो बस इस बात को दोहराकर खुद को अजबर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अफ़ान ने दर्जन के करीब किताबें एक साथ उठाईं और फिर संजीदा लहजे में गोयाते कमरे से बाहर चला गया। वो सारी किताबें बाहर खड़े मुलाजिम से कार की सीट पर तरतीब से रखवा रहा था। इसका तनक अंदाज फातिमा को एक पल के लिए हैरान कर गया, मगर वो जानकर भी अनजान बनी वाशरूम में वज़ू करने चलेगी, क्योंकि इस वक्त मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका था। अफ़ान को पोर्च में खड़ा देखा यान और शिफा खुशदिल मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इकट्ठे कार से बाहर निकले और फिर आगे बढ़ते अफ़ान से मुसाफा करने लगे। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते ही एक नर्स के ज़रिए से पता चला कि घर से किसी मुलाजमा का फ़ोन आया था, जिसमें उसने फातिमा के घर पर आने की इत्तला दी। शिफा ने फ़ौरन इस मुलाजमा को बैक कॉल करते खाना तैयार करने का ऑर्डर दे दिया और फिर अयान को पिक करने का कहती जल्दी जल्दी अपना बाकिया काम निपटाने लगी। फातिमा भी तब तक नमाज अदा करती टैक्सी से बाहर आ गई। इनसे मुसाफे के बाद अफ़ान और फातिमा तो वापस घर जाना चाहते थे, मगर अयान इन दोनों के मना करने के बावजूद ज़बरदस्ती इन्हें घर के अंदर ले गया। खाने के दौरान शिफा ने मेज़बानी के फ़राइज़ निभाते हुए कई बार शादी के बाद पहली बार मैके आने का जिक्र किया। वो जब भी ये जुमले दोहराती फातिमा अफ़ान से नज़रें चुराने पर मजबूर हो जाती थी। पिछले 2 दिन से अजलान की रूटीन काफ़ी हेक्टिक हो चुकी थी। सारा दिन वो सोफ़िया के साथ फ़िल्म की शूटिंग का काम करता और रात को देर तक स्टडी रूम में बैठा मिशन के सिलसिले में लैपटॉप पर अपना काम करने में मसरूफ़ रहता था।
आज भी वो रात के किसी पहर अचानक थकावट का एहसास होने पर लैपटॉप बंद करता रिवॉल्विंग चेयर से उठ बैठा। कमरे के अतराफ में सरसरी निगाह घुमाने के बाद अजलान ने स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाते सारी की सारी लाइट्स ऑफ कर दी और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद अजलान दाएं हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन पर किसी का नंबर डायल करते अपने कमरे की राहदारी की तरफ बढ़ने लगा। अस्सलाम वालेकुम ज़मान। अजलान ने अपने लहजे को जानते बूझते कदरे धीमा रख कर बात का आगाज़ किया। यस सर। ज़मान ने इस बात में सर हिलाते चौकस अंदाज में जवाब दिया। यार ज़मान, कल जो पीटर नामी शख्स सोफिया से मिलने शूटिंग सेट पर आया था ना? जी सर। वो आदमी मुझे कुछ मशकूक सा लगा। तुम उस पर नज़र रखवाओ और चेक करो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अजलान ने उंगली के पोर से पेशानी मसलते पुरसोच अंदाज अपनाया। जी सर, मुझे भी उनकी हरकत काफ़ी मुश्तबा सी लगी थी। ज़मान ने भी अपना खदशा जाहिर किया। मतलब? इसके बढ़ते कदम रुके। सर, उसके साथ जो 3 लड़के आए थे ना, इनमें से एक कंप्यूटर वर्किंग का माहिर है, इसे ज़ाती तौर पर जानता भी हो, मैंने भी 1-2 काम करवाए थे। पीटर के साथ उसकी मौजूदगी ने ही मुझे शुबे में डाल दिया था। अजलान इसकी बात पूरे ही नमाग से सुन रहा था। अजमान, तुम पर्सनली इस मसले की रिपोर्ट तैयार करो और जितनी जल्दी हो सके मुझे इन्फॉर्म करो, कहीं इनके मज़मूम मज़ाहिम किसी और की ज़िंदगी ही तबाह ना कर दें। अजलान कंप्यूटर वर्क की महारत के जिक्र से ही मामले की संगीनी बाम चुका था, लेकिन वो ये नहीं जानता था इस दफ़ा शिफ्कार कोई और नहीं बल्कि अजलान की अपनी ज़ात होगी। इस बार किस्मत सोफिया का साथ देने का फ़ैसला कर चुकी थी। अनकरीब ये चीज़ अजलान और ज़ैनब के रिश्ते पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। अजलान अब धीमी चाल चलते एक और नंबर डायल करते फ़ोन कान के साथ लगा चुका था। ज़ियान, कल की सारी कराची की फ़्लाइट्स की पैसेंजर लिस्ट बमा तस्वीर मुझे शेयर करो थोड़ा जल्दी। मुख्तसर इस्लाम दुआ के बाद अजलान ने मसरूफ़ अंदाज में गोया होते ज़ियान को एक नया ऑर्डर जारी कर दिया। ओके, मैं अभी सेंड करता हूँ। ज़ियान के फ़ोन डिस्कनेक्ट करते ही अजलान अपने कमरे की जानब बढ़ गया। अभी तक लाइट्स चल रही हैं, इसका मतलब ज़ैनब जाग रही हैं। अजलान ने खुशगवार एहसास के तहत डोर नॉब घुमाते कमरे का खुला दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया। कमरे के अंदर आते इसकी निगाहें बेसाता बेड की जानब उठ गईं, क्योंकि ज़ैनी इस वक्त बिना किसी कंफर्टर के तकिए पर सर रखे अपने पिंक टेडी बेयर को बाहों में समेटती चित लेटी हुई थी। शायद वो जागते जागते ही अचानक नींद में गोताजन हो गई। अजलान को कमरे की सर्द फिज़ा में अचानक खनकी का एहसास हुआ तो गहरा सांस भरते रिमोट से हीटर ऑन कर दिया। बेड पर बैठते ही अजलान ने तफक्कुर अमेज़ तासरात समेत ज़ैनब के माथे पर हाथ रख के इसका टेम्परेचर चेक किया, क्योंकि ज़ैनब की हद से ज़्यादा सुर्ख पड़ती नाक की रंगत इसे चौंकने पर मजबूर कर रही थी। शुक्र है टेम्परेचर तो नहीं है, लगता सर्दी की वजह से चेहरा इतना सुर्ख पड़ गया। इसके सुर्खी माइल रुखसारों को देखते अजलान ने कंफर्टर को थामे ज़ैनब पर अच्छे से उड़ा दिया। ज़ैनब को एक नज़र देखने के बाद अब वो खुद भी तकिए के साथ टेक लगाए मैसेज के ज़रिए ज़ैन की भेजी गई डिटेल्स चेक करने में जुट गया। जेडी, कल का दिन ठीक है इस काम के लिए, तमाम रास्ते भी क्लियर हैं, तुम अपना काम जारी रख सकते हो। अजलान ने ब्रीफली एक एक चीज़ का मुआयना करने के बाद जेडी को अगला कदम उठाने का हुक्म सादर कर दिया। 10 सेकंड्स के बाद जेडी ने भी ओके सर का जवाबी मैसेज सेंड कर दिया। आज का सारा काम मुकम्मल कर चुकने के बाद ही अजलान के चेहरे पर तमानियत भरी मुस्कुराहट दर आई थी। ज़ैनब के नींद में करवट बदलने पर अजलान को इसका गुलाबी माइल चेहरा वाज़िया दिखाई देने लगा। ज़ैनी के चेहरे की मासूमियत और दिलकश नैनो नकुश को महवियत भरी निगाहों से तकते अजलान के होंठों पर मुबहम मुस्कुराहट रही गई। तभी से अपनी समातों में एक आवाज़ बाज़गश बनकर गूंजती सुनाई देने लगी। ये तो बहुत ही नकचड़ी और तेज़ गुस्से वाली हैं, कैसे झेलते हैं आप इन्हें? टीनेज लड़के का ज़ैनी के बारे में पास किया गया कमेंट याद करते अजलान अब भी आहिस्तगी से मुस्कुरा रहा था। इस बच्चे ने बिल्कुल सही तजिया किया था इनके बारे में, ये वाकई बहुत गुस्से वाली है और नकचड़ी भी। अजलान ताइदी अंदाज में बड़बड़ाने के बाद अब ज़ैनब की सुर्ख नाक को ही बगौर देख रहा था। इसके जहन के पर्दे पर फ़ौरन ज्यूरिच शहर का एक मंजर उभर गया। स्विट्ज़रलैंड ज्यूरिच रेस्टोरेंट एंड होटल। 2 दिन तक जारी रहने वाली बर्फ़बारी के रुकते ही अजलान आज का सारा दिन होटल से बाहर गुजार कर आया था। रात होते ही वो अपने कमरे में आकर तकीमांदे अंदाज में बैठा बेड की पुश्त पर सर रख के मोबाइल पर शो होने वाले ज़रूरी नोटिफिकेशन चेक करने लग गया। तभी अचानक ज़ैनी की जानब से ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा पटकने के अंदाज में बंद किया गया। कमरे की साकत फ़िज़ा में अचानक एक शोर गूंजने पर अजलान ने भी चौंकते हुए फ़ौरन अपना झुका सर ऊपर उठाया। ज़ैनी,
अपने सुर्ख चेहरे और हद दर्जा गुलाबी नाक समेत इसे ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलती दिखाई दी। अजलान चूँकि अभी से ही देख रहा था, इसलिए ज़ैनी अजलान को एक सर्द निगाह से देखने के बाद यकसर नज़रअंदाज किए बेड के सामने मौजूद काउच पर बैठी अपने शूज़ की स्ट्रिप्स बंद करने लगी। इसकी सर्द मेहंदी को देखते अजलान को एक पल के लिए अचंभा सा हुआ, मगर वो बिना कुछ कहे इस तफसारी अंदाज में कंधे उचका गया। वो भी हस्बे आदत जवाबन इसे नज़रअंदाजी की ही मार मारना चाहता था, मगर आज न जाने क्यों इसकी निगाहें पलटती बार बार ज़ैनी के मुतहर्रिक हाथों पर जा रही थी, जिन्हें वो तैयार होने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। ज़ैनब इस वक्त ब्लैक टॉप के साथ डार्क ब्लैक जीन्स पहने नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। हद दर्जा गुस्से में होने के बायस इसका गुलाबी माइल चेहरा लाल बबू का लग रहा था। ज़ैनब अजलान को अक्सर नज़रअंदाज किए अब ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी अपने लंबे सिल्की गीले बालों को ब्रश से सीधा कर रही थी। इसने माथे पर लहराते कुछ बालों को पकड़ते छोटे से कैचर में मुकीद किया और बाकी के बाल वैसे ही खुले छोड़ दिए। ज़ैनब खुद की तैयारी को एक नज़र देखने के बाद बेड की साइड टेबल के बिल्कुल सामने आन खड़ी है। वो थोड़ा नीचे झुकती बिना कुछ कहे स्पॉट तासरात समेत अजलान को ही देख रही थी। क्या हुआ? ज़ैनी को यूं अपने इतने करीब खड़ा देख अजलान एक पल के लिए हैरान रह गया। अजलान के तासरात इस वक्त नासमझी से भरपूर लग रहे थे।